बीच में कौन आके एक तो ढूंढ करके बोलेगा पूरा मैदान हम लोग का है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब एक आदमी बोल दिया नमाज बंद हो जाएगा, 150 साल से वहां नमाज हो रहा, कभी नमाज बंद नहीं हुआ, और आने वाला 2000 साल, और ये जो मैदान है इसमें 10,000 लोग नमाज पढ़ेंगे। सदियों से 100 साल से अगर नमाज हो रही है तो मैक्सिमम वहां पर 2000 लोग पढ़ते हैं नमाज। ईद में, बकरीद में 2000 लोग। आप आइए, मैं आपको बोला, बकरीद है ना 7 तारीख, आप आइए, वहां नमाज होगी, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप गिनती कर लो कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। बकरीद में कम हो जाता है, ईद में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन 1500 2000, मैं खुद नमाज पढ़ता हूं, 1500 से 2000 लोग नमाज पढ़ते हैं। और ये मैदान में, पूरा मैदान में साल में 2 दफा नमाज होगा, 10,000 लोग नमाज पढ़ेंगे, जितना बड़ा मैदान है। तो कैसे ये सवाल करते हो, ये सुरसुरी देते हो, मैदान में नमाज बंद हो जाएगा। कोलकाता के मार्क्विस स्क्वायर मैदान को लेकर चल रही आशंकाओं को लेकर वार्ड नंबर 39 के काउंसलर एनडी जसीमुद्दीन ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया है कि यह मैदान खेलकूद के लिए बना रहेगा और इसका आकार भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह मैदान अब 80 मीटर से बढ़कर 95 मीटर हो जाएगा और यहां पर फीफा के गाइडलाइन के अनुसार फुटबॉल मैच आयोजित किए जा सकेंगे। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और उन्हें बताया कि यह मैदान अब पहले से भी बड़ा हो गया है और यहां पर वाटर रिजर्वायर के साथ साथ चिल्ड्रन पार्क और मॉर्निंग वॉकर्स के लिए भी जगह होगी। इस मैदान के स्टेक होल्डर्स, जिनमें सिटी कॉलेज, विद्यासागर कॉलेज, कैलकटा यूनिवर्सिटी और YMCA शामिल हैं, ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मेयर फिरहाद हकीम को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि रिजर्वायर जरूर बनाया जाए, लेकिन इसके लिए मैदान का आकार कम नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार, विद्यासागर कॉलेजेर प्रिंसिपल डॉक्टर नाताशा दासगुप्त बोलছি। আমি আমার বক্তব্যের প্রথমেই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের মাঠের পক্ষ থেকে এবং এই দুটি কলেজের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই। কারণ আমরা কিছুদিন আগে মাঠ এবং দুটি কলেজ মিলে গত বছর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা একটি অ্যাপিল করেছিলাম যে আমাদের একটি খেলার মাঠ দেওয়া হোক, সেই সঙ্গে যে চারদিকের লোকজন আছেন মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকার লোক, তারা যেন জলেরও সুব্যবস্থা পান। কারণ আমরা জানি যত দিন যাচ্ছে আমাদের কলকাতা থেকে সবুজ হারিয়ে যাচ্ছে, মধ্য কলকাতায় কোনো বড় মাঠ নেই। ন্যাক আপনারা সবাই জানেন, আমরা ন্যাকের মধ্যে দিয়ে যাই কলেজগুলো, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের খেলার কোনো জায়গা নেই। মাননীয়াকে ধন্যবাদ, তার উদ্যোগে, তার সরকারের প্রচেষ্টায় আমরা একটা মাঠ ফেরত পাবো, হারিয়ে যাওয়া মাঠ যেটা আমাদের আগে ছিল এখন আর নেই, সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত মাঠটি আমরা ফেরত পাবো এবং একই সঙ্গে এলাকার বিস্তীর্ণ লোক জল পাবেন। আমি একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব মহানাগরিক মেয়র সাহেবের প্রতি, কারণ তিনি আমাদের সময় দিয়েছেন, আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তার এতে আমরা গেছি, KMC-তে গেছি, মিউনিসিপ্যাল কলকাতা কর্পোরেশনের অফিসে গেছি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বলেছেন কোনো অসুবিধা হলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এবং সর্বোপরি লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট বলে একটা শব্দ আছে, শেষ হলেও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয় আমাদের কাউন্সিলর সাহেব, কারণ তার উদ্যোগেই আমরা আজকে পাচ্ছি একটি মাঠ যা হারিয়ে গিয়েছিল ফেরত পাচ্ছি, আমরা পাচ্ছি জলাধার যা আমাদের সাধারণ লোকেদের অনেক সুবিধা করবে, জল কষ্ট থেকে বাঁচাবে। একই সঙ্গে আমরা পাচ্ছি একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স যেখানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বা এলাকার স্থানীয় ছেলেমেয়েরা খেলাধুলোর সুযোগ পাবে। আপনারা যদি একটু ভালো করে দেখেন, আমরা আজকে পেয়েছি যে নকশাটা পেয়েছি, আমরা এই প্রতিশ্রুতিও পেয়েছি কাউন্সিলর সাহেবের কাছ থেকে যে তার সার্টিফাইড কপি, যেমনভাবে কলকাতা কর্পোরেশন আমাদের সার্টিফাইড কপি দেয়, সেই পুরো যে নকশাটা তার সার্টিফাইড কপি তিনি মাঠ কমিটিকে দেবেন। এবং সেখানে আমরা দেখেছি শুধু মাঠ, একটা সবুজ মাঠ খেলার জন্য তা নয়, তার সঙ্গে আমরা পাবো একটা সেন্টার যেখানে ক্যারাম খেলা হবে, ব্যাডমিন্টন খেলা হবে, কার্ড আছে, চেস আছে, আমাদের মা ক্যান্টিন আছে যেখানে লোকজন গিয়ে খেলাধুলোর ফাঁকে বাচ্চারা গিয়ে খাওয়া দাওয়া করতে পারবে খুব কম টাকায়, এবং একটা বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে, চিলড্রেন্স পার্ক আছে, বয়স্ক মানুষদের
প্রাতঃভ্রমণের একটা জায়গা আছে। এই যে একটা গোটা প্যাকেজ, এই প্যাকেজটা আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য আমি বিশ্বাস করি এই প্যাকেজ আমরা শিগগির পেতে চলেছি। আমি কাউন্সিলর সাহেবকে একবার ধন্যবাদ জানাবো এবং একই সঙ্গে আপনাদের আমি জানাবো যে এই যে প্রচেষ্টা আমাদের শুরু হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতায়, মাননীয় মেয়রের সহযোগিতায় এবং কাউন্সিলরের পরিকল্পনায়, এই প্রচেষ্টাটা কথা আপনারা চারদিকে ছড়িয়ে দিন এবং আমি একই সঙ্গে কাউন্সিলর সাহেবকে অনুরোধ করব যে এত সুন্দর একটি মাঠ, জলাধার, এই সব প্যাকেজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের উপহার দিন। কারণ আমাদের সামনেই ন্যাক আসছে, আমাদের বাচ্চারা এনএসএস করবে, এনসিসি করবে, খেলাধুলো করবে, তাদের জায়গা চাই, সেই জায়গাটা উপহার দিন আমাদের। কোশ্চেন যেটা করছেন তার উত্তর দেবো। আপনি যে কোশ্চেন করেছেন তার উত্তর দেব। বর্তমানে যে আমরা বলি মাঠ, খারিজে মাঠ, একটা মাঠ থাকে, মাঠের বাইরে অংশ থাকে। আপনি মহাডাই স্পোর্টিং ক্লাবে যাবেন, সেখানে ক্লাব যেখানে মেম্বাররা বসে তারাও মাঠের অংশ, কিন্তু আবার ওটা মাঠ নয়। আপনার ইস্ট বেঙ্গলে যেমন ক্যান্টিন আছে, ওটাও মাঠের অংশ, কিন্তু ওটা মাঠ নয়। আপনি মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাবে যান, ইনডোর স্টেডিয়ামে যান, যেটা পাভেলিয়ান আছে, ওটা মাঠ না মাঠের অংশ, কিন্তু মাঠ নয়। মাঠের যেমন মসজিদে কি পিছাবখানা, মসজিদের ভিতর বলবেন না মসজিদের বাইরে বলবেন, কি বলবেন? আমরা বলি খারিজে মসজিদ। তো আমাদের ওখানে দেখবেন মদনমোহন বর্মন স্ট্রিটে একদিকে যেমন পুলিশ ফাঁড়ি, আরেকদিকে হচ্ছে ওই মাহমুদ সাহেবের বাংলো, আর তারপরে হচ্ছে আমাদের রিক্রিয়েশন কমিটির যে পাভেলিয়ানের পরে পিচের একটা রাস্তা, পিচের রাস্তার পরে ময়দান। 80 মিটার ছিল, ওটা 95 মিটার হচ্ছে। তারা সবাই, ম্যাডামও আমাদের গাইডলাইন দিয়েছিলেন, স্যাররা গাইডলাইন করেছিলেন যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ফিফার গাইডলাইন মেনে মাঠটাকে বাড়াতে হবে। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে বাড়িয়ে দিলাম। বর্তমানে যারা ওখানে খেলছিলেন, যেই মাঠের অংশের মধ্যে খেলছিলেন, তাকে বাড়ানো হয়েছে, কম হয়নি। আর বলুন আপনার কোনো, ওনার ক্লিয়ার করে দিই। वही सवाल वही है कि मेरा बुनियादी सवाल होता है कि जो मैदान का जो जगह जो आप बढ़ा, तो वो तो पहले से ही मैदान के हिस्से की जमीन थी या अलग से? आपको मैं फिर एक बात बता रहा हूँ, पार्क सर्कस मैदान आपने घुमा है? पूरा मैदान पार्क सर्कस मैदान का इलाका है। लेकिन आप पार्क सर्कस मैदान में क्या सिर्फ मैदान है? उसको तो छोटा कर दिया गया है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैदान का इलाका क्या, हमारे बच्चे, हमारा कॉलेज, ये हमारा मकसद है। हम उस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं, हम लोग कोई भी नहीं करेंगे। आपको मैं आज भी ये कह दे रहा हूँ, जो मैदान हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो साइज़ है, चौड़ा और लंबाई जो साइज़ है, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, पार्क सर्कस को छोड़ के कलकत्ता में इतना बड़ा मैदान खोज के दिखा दीजिए आप उनको। हमारे पीफा के प्रेसिडेंट साहब भी कहे, हम आश्चर्य हैं कि इतना बड़ा मैदान कलकत्ता के किसी भी कोने में नहीं है। साहब, जब ये प्रोजेक्ट बन रहा है, अनाउंसमेंट हुआ था, तो स्थानीय लोगों ने एक बार वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था, थोड़ा हंगामा भी बरपा हुआ, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मैं सिर्फ पहले ये कह रहा हूँ कि मेरा रिपोर्ट रखने के बाद अगर आप सवाल करें तो बेहतर होगा। मेरा रिपोर्ट अभी मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हमारे जो ऑनरेबल मेंबरों ने, हमारी प्रिंसिपल साहबा ने जो बातें रखी हैं, उसके मुतालिक अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। जब मैं बोल दूं, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए किसने क्या बोला, उससे इम्पॉर्टेंट यह है कि आप क्या समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, रिक्रिएशन कमेटी चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी दी है, ये है तरीका। बीच में कौन आके एक तो ढूक करके बोलेगा पूरा मैदान हम लोग का है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब वो एक आदमी बोल दिया नमाज बंद हो जाएगा, 150 साल से वहाँ नमाज हो रहा, कभी नमाज बंद नहीं हुआ और आने वाला 2000 साल तक बंद नहीं हो। उसके पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है। আমাদের মেন বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের রিক্রিয়েশন কমিটির সম্পাদক সাহেব, সিটি কলেজ, বিদ্যাসাগর সবাই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠি দিয়ে কি বলেছেন যে আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ ময়দান আমরা দেখাশুনো করি, আমাদের ছেলেরা খেলে, আর सेंट्रल कोलकाता ছেলেরা, मैं सिर्फ केला बागान की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल कलकत्ता के बच्चे अगर यहाँ खेलेंगे तो कितना बड़ा मैदान चाहिए? আমরা বলছি সেন্ট্রাল কলকাতার ছেলেরা খেলবে এখানে, শুধু 39 ওয়ার্ডের ছেলেরা খেলে না, আশেপাশে যারা আছেন তারা খেলবেন।
আইফের খেলা হবে, কলেজের খেলা হবে, তারা চিঠি দিয়েছেন, মেয়র সাহেবকে চিঠি দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। আমাদের মেয়র সাহেব বলেছেন এবং আমাদের একটাই লক্ষ্য যে আমরা মাঠ যা ওরা राजी ওইদিকে আমরা मुश्ताक साहब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए ওইদিকে যেমন वोमेन अभी वो बोल रहा है क्या देखो वो वाला काउंसलर साहब तोड़वा दिया वो वाला बना के तोड़वा दिया तो क्यों तोड़ाया ম্যাডামদের নির্দেশে যে মাঠটা কোনো মতেই ছোটা করা যাবে না ফিফার গাইডলাইনের বাইরে আমরা কোনো মাঠ অ্যাকসেপ্ট করব না তাই আমরা করেছি যে আপনারা যাতে রাজি আমাদের সাধারণ মানুষের খেলার জন্য যা মাঠে দরকার আমরা সব हम तोड़ दिए उसको मुश्ताक भाई क्या इल्ज़ाम लगा 50 लाख रुपया खर्चा हुआ काउंसलर ने तोड़ दिया अरे तो काउंसलर ने किसके लिए तोड़ा तुम्हारे लिए तुम्हारे चेहरे में हंसी लाने के लिए मैंने तोड़ दिया कि तुम्हारा मैदान वो जो चिल्ड्रन पार्क था और वुमेन पार्क था वो पार्क से लेकर पिच तक का 80 मीटर था अभी वो 95 मीटर 96 मीटर हो गया देख लीजिए आप 95.54 मीटर तो कितना 15 मीटर बढ़ा है ना कमा है आप तो खेल रहे थे ना उस पर उधर चिल्ड्रन पार्क था लेडीज पार्क था झुलुआ लग गया था हमने तोड़ दिया उसको किसके लिए 15 मीटर बढ़ाने के लिए 15 मीटर बढ़ाने का मतलब कितना फुट होता है नियर अबाउट 50-55 फुट हो जाता ना दादा एक मीटर एक फुट ताले 15 मीटर बढ़ा माने 45 फुट तो आप समझ लीजिए आप इधर से सोचिए लेडीज पार्क और पीच का जो रास्ता था पीच ये पीच हमने नापा 80 मीटर था आज 95 मीटर हो रहा तो बढ़ा या घटा बढ़ा कि घटा बढ़ा है ना आप इस पे आइए ना मैंने मार्ट बढ़ाया और किसके गाइडलाइन पर जबकि फीफा के लोग यहाँ बैठे हैं फीफा को जितना मैदान चाहिए उससे भी ज़्यादा बड़ा है अगर आप कह सकते हैं तो 1.5 मैदान है आपने मुझसे मांगा था 1 रुपया हमने आपको 1.5 रुपया दिया आपने 100 रुपया का तलब किया था हमने आपको 150 रुपया दे दिया आपका जो गाइडलाइन था उसके हिसाब से 100 रुपया मांगे थे हम 150 रुपया दे दिया 80 मीटर था वो 95 मीटर हो गया मैंने 95 मीटर स्क्वायर फीट में अगर फुट में आएंगे तो 300 फुट चाह रहे थे 313 फुट हो गया इधर में तो और कम ही था ना दादा इधर में उतना फुट नहीं लगता फिर भी 304 फुट है बहुत बड़ा मैदान है और जो लोग कहते हैं कि नमाज बंद हो जाएगा बहुत अच्छा लगता है ये सब बात बोलने में नमाज बंद हो जाएगा अभी कितने लोग नमाज पढ़ते हैं मैं बचपन से वहाँ नमाज पढ़ता हूँ ईद का और बकरीद का ईद उल फित्र का ईद उल अजहा का 2 नमाजें होती हैं वहाँ कितने लोग पढ़ते हैं नमाज आप लोग भी कैमरामैन हैं बहुत बार फोटो लिए हैं मैदान का कितने लोग 1200 1500 2000 और ये जो मैदान है इसमें 10,000 लोग नमाज पढ़ेंगे सदियों से 100 साल से अगर नमाज हो रही है तो मैक्सिमम वहाँ पर 2000 लोग पढ़ते हैं नमाज ईद में बकरीद में 2000 लोग आप आइए मैं आपको बोला बकरीद है ना 7 तारीख आप आइए वहाँ नमाज होगी मैं हाथ जुड़ के कहता हूँ आप गिनती कर लो कितने लोग नमाज पढ़ते हैं बकरीद में कम हो जाता है ईद में थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन 1500-2000 मैं खुद नमाज पढ़ता हूँ 1500 से 2000 लोग नमाज पढ़ते हैं और ये मैदान में पूरा मैदान में साल में 2 दफ़ा नमाज होगा 10,000 लोग नमाज पढ़ेंगे जितना बड़ा मैदान है तो कैसे ये सवाल करते हो ये सुरसुरी देते हो मैदान में नमाज बंद हो जाएगा अब मेरा जो आपसे ये बात है कि जो हमारी वज़ीर आला का गाइडलाइन है हमारे मेयर साहब के गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने ये तय किया कि हमारा जो रिक्रेशन कमेटी है हमारी जो कॉलेजेस हैं उनके साथ बात करके उनका गाइडलाइन के अनुसार आज यहाँ पर सब लोग जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं समझदार लोग हैं जो ये समझते हैं कि तरक्याती काम में आज हम लोग ये मैदान लेके कब्रिस्तान नहीं जाएंगे मैं ये कब्रिस्तान लेके नहीं जाऊंगा लेकिन कब्रिस्तान जाने से पहले कुछ तैयारी कर रहा हूँ 2 बात को समझने की कोशिश है ये जसीमुद्दीन ये मैदान बागमारी कब्रिस्तान में लेकर के नहीं जाएगा कब्र में लेके नहीं जाएगा लेकिन कब्र में सुकून की ज़िंदगी गुजरे इसके लिए हम ये मैदान को बनाना चाहते हैं आपने मैडम का एक बात सुना इस पर तो कोई विचार नहीं करते हमारा मैदान ख़त्म हो गया है कौन बोल रहा है आपका मैदान मार्कस का मैदान है 18 महीना का बोला गया था 12 साल बाद मैदान मिला किसने खाली कराया 2018 से किसने खाली कराया 250 गाड़ी राविस उठाया है मैंने हाई कोर्ट में मामला केस खाया है वहाँ लोगों को चाबी मिल गया लेकिन दुकान चल रहा है
कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में दुकान खोल ली है, यहाँ गोडाउन चला रहे हैं, 8,000, 10,000, 15,000 रुपया। कौन गाली सुना? मैंने हाई कोर्ट में केस खाया है। वो जो कोबी वाला लोग और सब जो 12-15 दुकान बना रखा था, सबको मैंने बुलडोजर से तोड़ दिया। तो बोला कि मेरा इसमें कैश था, मेरा तिजोरी था, 1,40,000 रुपया था, जसीमुद्दीन ने चोरी कर लिया। मैंने चोरी का केस खाया। वो मैं बच गया इसलिए क्योंकि वो लोग चाबी ले चुके थे। जब मैं हाई कोर्ट पहुंचा कि जब तुम चाबी लेके थे, हैंड ओवर हो गया, तुम्हारा पे গেছিলে, তোমরা কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে দোকান পেয়ে গেছো, কর্পোরেশনে লিখে দিয়েছো যে আমরা কর্পোরেশনে দোকান পেয়ে গেছি, সারেন্ডার হয়ে গেছে, তাহলে তুমি বলছো ওখানে তিজোরি ছিল, জসিমউদ্দিন নিয়ে নিয়েছে, তাহলে চাবি নেবার পরও তুমি ওখানে কি করছিলে? বছর পর বছর, 3 বছর 4 বছর চাবি নিয়েছে, ওখানে গোডাউন চলছে, চাবি নিয়েছে, ব্যবসা করছে, কারা খালি করালো? আমাদের কর্পোরেশনে ওখানে 3টে দপ্তর ছিল, ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট, পার্কস অ্যান্ড স্কোয়ার, ইঞ্জিনিয়ারিং। আমি ভেঙে দিলাম আমার দপ্তরের, আমার ডিপার্টমেন্টের দপ্তর আমি ভেঙে দিলাম। পুরো মাঠটাকে আজকে পরিষ্কার করিয়েছি, नीट एंड क्लीन করেছি, মাটি ফেলেছি, আজকে গ্রেनेज করছি। आप वहाँ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं कि खेला का मैदान है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझसे आप बहस कर लो, 20 फुट बालू है। जब बच्चे फुटबॉल खेलते हैं तो खाली बालू उड़ता है। 5 साल के बाद सबको जो है वो सांस का बीमारी होगा, लंस में, फेफड़ा में बाली जमा हो जाएगा। 20 फुट बालू है। वो लेडीज पार्क और चिल्ड्रन पार्क हम मट्टी लगा लगा के 6 बार 7 बार उसको ड्रेसिंग किया, तो अभी वहाँ घास उग रहा है। हम लोग का ये भी मकसद है कि ये जो बड़ा माठ जो हम लोग का मैदान होगा, इस मैदान को भी करोड़ों रुपया खर्चा करके हम लोग इसमें माटी फेंक करके इसमें घास उगाएंगे, ताकि हमारे बच्चे जो है बीमारियों से बचे। अभी जो मैदान है वो खेलने का मैदान है। कौन बनाएगा वो मैदान? हमारे कॉलेज के बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। मैडम लोग के सामने बोल दे रहे हैं, जितने कॉलेज के बच्चे वहां पर मैच होता था, अभी बताइए 15 साल में, 18 साल में एक भी मैच हो पा रहा है? आईफे वहां आईफे खेलने नहीं मांग रहा है, बच्चे खेलना नहीं चाह रहे, बालू उड़ता है। तो हमारा मकसद ये है, 272 कट्ठा मैदान, कैलकाटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसका मालिक है। आप हमसे बहस कर रहे हैं, लेकिन मैंने सब इंतजाम कर लिया है। ये खरीदा गया था कितने में मालूम है आपको? कैलकाटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट खरीदा था ये जमीन। कितने में? 97,000 में, 97,000। 1887 में 97,000 रुपया में राज्य सरकार ने खरीदा था। बैसाख दीगी था ये, उन लोगों से। पोखर था, नदी, कौला बागान जो नाम था, ये पुखर था, तालाब था, बैसाख दीगी लाइन का नाम से राज्य सरकार ने इसको 97,000 रुपया में 1887 में खरीदा था। और बाद में इसको जोड़ा, यूनिवर्सिटी वगैरह को जोड़ा कि आप लोग इसको देखो। हम ये किया, मट्टी भरा गया, मैदान किया गया, आप लोग खेलो, बच्चे लोग खेले, कॉलेज के बच्चे खेले। तो हमें ये खेल का मैदान था, खेल का मैदान है और खेल का मैदान रहेगा। और मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? क्या मैं घर में लेके जाऊँगा? मेरा कोई व्यक्तिगत किसी का है? यहाँ क्या होगा, एक मैदान जितना बड़ा चाहिए। जो मैदान में वो लोग खेल रहे थे 80 मीटर में, आज वो हो जाएगा 95-96 मीटर, 15 मीटर बढ़ा है लंबाई में। एक मैदान बड़ा हो रहा है, जो था उससे भी ज़्यादा 1.5 मैदान हो गया। हम फिर बोल रहे, वो कैलकुलेशन में आपने 1 रुपया तलब किया था, हमने आपको 1.5 रुपया दे दिया, मैदान और बढ़ा दिया हम लोगों ने। लेकिन इसके साथ साथ एक वाटर रिजर्वर होगा, वो कोना में होगा। और ये बात को आप क्लियर रख लीजिए, वाटर रिजर्वर ये मैदान के नीचे नहीं होगा। ये जो 95/96 जो जगह है, इसके नीचे कोई भी वाटर रिजर्वर नहीं होगा। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, कंस्ट्रक्शन, जो रिजर्वर का कंस्ट्रक्शन के लिए एक दिन के लिए भी मैदान बंद नहीं होगा, खेल बंद नहीं होगा। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं आप लोग के सामने में कि एक दिन के लिए भी खेल का मैदान बंद नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ा मैदान 95/96 जो मीटर है, ये मैदान, इसके नीचे कोई रिजर्वर ही नहीं हो रहा है। इसके नीचे कोई रिजर्वर नहीं हो रहा है। वहां पर हम लोगों के पवेलियन है, पवेलियन और उसके पीछे प्रैक्टिस मैदान है, उसके पीछे भी कोई रिजर्वर का काम नहीं होगा। उसके नीचे भी कोई रिजर्वर का काम नहीं होगा, कोई पानी का काम नहीं होगा। और रिजर्वर होने के बाद जो जगह है, जैसे मेट्रो रेल के ऊपर में आप सेंट्रल एवेन्यू देख लीजिए,
श्याम बाजार से लेकर आप टॉलीगंज नजरुल इस्लाम तक जो जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या चल रही है? सब तो चल रहा है। इसी तरह अंडरग्राउंड जो रिजर्वर होगा, वो रिजर्वर के ऊपर क्या होगा? चिल्ड्रन पार्क, वुमेन पार्क, वो भी पार्क होगा। उसके ऊपर आप जाके देख लीजिए, दिलहौजी के आज क्या बोलते हैं, राइटर्स बिल्डिंग के सामने में देख लीजिए, अंडरग्राउंड है, उसके ऊपर कितना खूबसूरत पार्क है। अभी विक्टोरिया मैदान में जाइए, विक्टोरिया हेरिटेज है, फोर्ट विलियम मिलिट्री के अंदर में है विक्टोरिया की पूरी जमीन, और वो हेरिटेज है। आज उसके ऊपर में मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो कैसे हो रहा है? आज दुनिया बदल रहा है, एक ब्रिज के ऊपर दूसरा ब्रिज हो रहा है। आज पूरा मेट्रो का जाल बिछ रहा है। एक तो टाइम ऐसा आएगा कि आपके घर के नीचे से मेट्रो जा रहा है। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में मेट्रो का पूरा जाल बिछा, जामा मस्जिद के अंदर से मेट्रो का रेल गया, जामा मस्जिद के अंदर से मेट्रो का रेल गया, मेट्रो का स्टेशन गया है। आधुनिक युग है, तरक्की होगा, डेवलपमेंट होगा। हम लोग इस मैदान को सही मैदान, खेल कूद का मैदान बनाना चाहते हैं। और रिजर्वर के बाद क्या होगा? रिजर्वर तो नीचे रहेगा, कोना में एक तो जगह रहेगा गेट, जिस तरह से आप मेट्रो रेल का गेट देखिए, अंदर जाने का और बाहर निकलेगा खाली ये गेट दिखता है, बाकी तो सब पब्लिक के लिए है। उसी तरह ये मैदान में रिजर्वर होने के बाद एक सिर्फ गेट होगा, बाकी पूरा जगह जो है चिल्ड्रन पार्क, वुमेन पार्क होगा। क्या होगा? चिल्ड्रन पार्क, वुमेन पार्क। हमारे बच्चे 39 नंबर वार्ड केला बागान के बच्चे जिनको बहका करके बांस तुड़वा रहे हैं, आप उनसे पूछिए हमारे बच्चे झुलुआ झूलने कहाँ जाते हैं? अब मैदान में झूलेंगे, उनके लिए मैदान में झुलुआ लगाया जाएगा, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी घर की औरतें, खवातीन, उनका पार्क होगा, वो मॉर्निंग वॉक कर सकेंगी, खवातीन का पार्क। और पूरा पार्क 22 फुट सराउंडिंग घेर देंगे हम लोग। एटा तो हम हमारे घर के नौजवान मॉर्निंग वॉक कहाँ करने जाते हैं? खेल का मैदान रहेगा, जितना मैदान चाहिए उससे बड़ा मैदान दे रहे हैं हम लोग। साथ में मॉर्निंग वॉक का ट्रैक रहेगा। उसके बाद में हम लोग एक हेल्थ सेंटर भी वहाँ करेंगे, सैटेलाइट हेल्थ सेंटर। उसके लिए हम लोग को ज़्यादा जगह नहीं लगेगा, थोड़ा जगह लगेगा, कोना में करेंगे। ये जो भी काम करेंगे ये मैदान को छोड़कर। उसके बाद आज बस इतना ही बोलेंगे, और डिटेल्स में हम लोग, मैडम ने जो बात कहा, मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी दिया गया, वो चिट्ठी के अनुसार इसमें भी साफ लफ्ज़ों में लिखा गया है कि हम लोग को मैदान चाहिए, और जितना इन लोगों को मैदान चाहिए था उतना मैदान हम लोग करके दिया। मैडम ने कहा है पूरा कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी विथ सिग्नेचर ऑफ कमिश्नर, सर्टिफाइड कॉपी दे के पूरा प्लान, पूरा कागज़, पूरा डॉक्यूमेंट इन लोगों के सुपुर्द करना है। वो मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ। और मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर बस इतना ही बात कहना चाहता हूँ। फिर मैं तमाम जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो खेल प्रेमी हैं, जो हमारे रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे अवामुल नास है, हम सब से बैठ के बात करना चाहते हैं, हम सब के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ ये बात कहना चाहते हैं कि मकसद मैदान होना चाहिए, मकसद मैदान होना चाहिए। अगर और कोई मकसद लेकर के कोई अगर काम करने की कोशिश कर रहा है, मैं उनसे कह रहा हूं कि अपना तो अपना, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बर्बाद ना करें, समझदारी से काम लें, किसी के बहकावे में न आए। मैदान को खूबसूरत, सज्जो सादाब और नायाब बनाने में हम सबका ताउन करें। आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पहला जो पड़ाव है रिक्रिएशन कमेटी, तमाम कॉलेज, उस पड़ाव से आज मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे ये जो दानिशमंद लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, हम लोग सब एक मत हैं। बस इनका एक ही तो डिमांड है कि सारा प्लानिंग, सारा जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने दिया है, वो आप सर्टिफाइड कॉपी करके हमको दे दीजिए। हम दीदी से ये टाइम लेंगे, 15 दिनेर मध्य, 15 डेजर मध्य আমি सब আপনাকে लिखे देव। मैं आप लोग के माध्यम से, ये अगर कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। मैं हाँ, एक मिनट, आपके माध्यम से मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मैदान और साथ में खारिजे मैदान, मैदान के कोने में, एक कोना में वो, एक कोना, अगर थोड़ा बहुत जगह मैदान को छोड़ करके अगर साइड में कोई, उसको अगर हम कम्युनिटी हॉल बनाते हैं, चिल्ड्रन पार्क बनाते हैं, अगर लेडीज़ का पार्क बनाते हैं, मॉर्निंग वॉक ट्रैक बनाते हैं, तो किसके लिए? आप ही के लिए। मैं कब्र में लेके नहीं जाऊँगा।